Good morning, friends. So, how are you all? And I'm back with GST with most important chapter ITC, and in that most important rule 43. See, we are done with rule 42. We are done completely with rule 42. हमने rule 42 के questions भी discuss कर लिए and damn easy. That means what was rule 42 कि input and input services अगर आपने purchase किए उस पर आपने जो टैक्स पे किया है और आप उस टैक्स का अप्रोप्रिएशन कैसे करोगे, मतलब how much are you going to use for your business purpose, your personal purpose and your business purpose, how much for taxable supply and zero rated supply and how much for exempted supply. ये हम पूरा प्रोविजन रूल 42 में पढ़ के आए थे. अब हम बात करते हैं किसकी, रूल 43 की. एंड दिस इज एन अमेंडमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2020 फाइनल्स में. तो नो डाउट वी विल बी हैविंग अ क्वेश्चन ऑन दिस रूल 43 at your level. May not be a very difficult, but yeah, a simple question is 100% going to come. Am I clear? I hope you're with me. All with me, please reply. Okay, so now let's start. थोड़ा slowly चलेंगे, थोड़ा language है. I hope you're with me. Yes. So now let's start. Manner of determination of input tax credit in respect of capital goods and reversal thereof. So now next question what should come to your mind is कि बॉस capital goods के लिए रूल अलग बनाने की जरूरत क्या थी. मतलब इनपुट सर्विसेज के साथ आपने कैपिटल गुड्स का रूल क्यों नहीं बनाया. व्हाई हैव यू गिवन two separate rule, one for inputs and input service and another for capital goods. Am I clear? Now the reason behind that is I'll tell you. Inputs and input services में क्या होता है, you can give link. For example, आज सपोज एक क्लास है मेरी और क्लास में मेरा लेक्चर चल रहा है, राइट, एक बैच है. अब उस बैच में मैंने कितना रॉ मटेरियल दिया, मतलब कितनी बुक्स मैंने बांटी है. आई कैन कीप अ होल्ड ऑफ दिस. अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों की इतनी बुक्स लगी है तो आई कैन कीप अ होल्ड ऑफ दिस. उस क्लास में फैकल्टी को मैंने कितना पेमेंट किया है, मैं सर्विसेज का भी आई कैन कीप अ होल्ड. मतलब इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज 1 to 1 समझ में आ जाता है. पर उस क्लास में मेरा एसी लगा हुआ है, मेरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है. Getting my point? These are my capital goods. I use my camera, I use my PC, I use my laptop, I use everything and they are what? Capital goods. और वो 1 to 1 नहीं होता है क्योंकि नॉर्मली हम कैपिटल गुड्स की लाइफ को क्या मान के चलते हैं, 5 years. हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करना, नॉर्मली. तो अगर मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दो प्लीज. अगर मैंने कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 years मान के चला है तो पर ईयर मैं कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगी. रिप्लाई फास्ट. अगर मैंने कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 years मान के चला है तो पर ईयर, प्लीज रिप्लाई फास्ट, पर ईयर मैं कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगी. रिप्लाई करो फास्ट. लॉजिकली समझेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा. बाई चांस कुछ भूल भी गए तो भी एग्जाम में याद रहेगा अगर लॉजिकली याद किया है तो. reply agar if you are assuming the life of asset to be 5 years, that means how much percentage you are going to charge depreciation every year. Fast, just numbers लिखना है. If my life of the asset is 5 years, how much will be the depreciation every year? Correct? 20%. 20%, अरे 20% every year charge करूंगी तो 5 years into 20% will become 100%. 100% मतलब 5 years में मैं fully depreciate कर दूंगी assuming SLM method. Assuming SLM method, straight line method. I hope with me, मैं WDV की बात नहीं कर रही हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो. अगर आप पूरे साल भर में 20% depreciation चार्ज कर रहे हो तो पर क्वार्टर कितना चार्ज कर रहे होंगे. If you're charging depreciation 20% for the whole year, then how much depreciation are you going to charge for the every quarter? Every quarter कितना चार्ज करोगे. जल्दी रिप्लाई करो यार प्लीज गर्ल्स. If you are charging 20% depreciation for the whole year, how much are you going to charge each quarter then? 5%. सिंपल, वेरी सिंपल. अगर साल का 20% मतलब क्वार्टर का 5, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जन फेब मार्च. वी हैव 4 क्वार्टर्स, तो 5 into 4 is 20%. कीप दिस इन माइंड. ये दिमाग में रखना, ये दिमाग में हो गया तो बात खत्म. आगे
इसका रीजन ये है, इसलिए 43 रूल हमको अलग से देना पड़ा, क्योंकि आज इस असेट का प्रॉब्लम ये है कि मैं इस असेट को लाइफ में आगे भी यूज करने वाली हूँ, तो इसका 1-to-1 पॉसिबिलिटी नहीं होता है। दूसरा एक और रीजन है, एक और रीजन आई टेल यू व्हाई इज यू हैव अ सेपरेट रूल, व्हाई यू हैव अ okay why you have a separate rule for capital goods. Capital goods क्या होता है? Suppose let's understand, मैं सपोज दो प्रोडक्ट में, ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट में, मैं दो प्रोडक्ट में डील करती हूँ, आई हैव टू फिनिश गुड्स, और ये मेरा टैक्सेबल है, ये मेरा टैक्सेबल है, और ये मेरा एग्जम्प्टेड है। आई एम इनटू टू गुड्स, मैं दो प्रोडक्ट बनाती हूँ और एक मेरा टैक्सेबल है और एक मेरा एग्जम्प्टेड है। मतलब अज्यूम करो मैंने मशीनरी 1 खरीदी, मैंने मशीनरी 1 खरीदी जो मैं एक्सक्लूसिवली कहाँ के लिए यूज कर रही हूँ? ए के लिए यूज कर रही हूँ। तो इस मशीनरी 1 पे जो मैंने टैक्स पे किया होगा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुल, यहाँ हम प्रोविजन पढ़ पढ़ के चलेंगे पर एक बार लॉजिक समझ लेते हैं। अगर मैंने मशीनरी 1 परचेस करी है और मैंने मशीनरी 1 एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल गुड्स ए के लिए ही यूज कर रही हूँ, तो इस मशीनरी पे मैंने जितना भी टैक्स पे किया होगा उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। अग्रीड? इसका मुझे आईटीसी मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अज्यूम करो मैंने मशीनरी 2 परचेस करी, मैंने मशीनरी 2 परचेस करी, तो लेट मी राइट वन बाय वन। मशीनरी 1, मशीनरी यूजेज, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपन लिखते जाएंगे। मशीनरी 1 टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हैं, 100% आईटीसी मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अज्यूम करो मैंने मशीनरी 2 परचेस करी जो मैं एक्सक्लूसिवली बी के लिए यूज कर रही हूँ। बी मेरा कौन सा गुड्स है? एग्जम्प्टेड गुड्स है। ये तुम्हारा लॉजिक है जो 17.1 एंड 17.2 क्लियर कर चुका है। 17.1 क्या बोलता है? बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तो मिलेगा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे तो नहीं मिलेगा। फिर बिजनेस पर्पस में टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज करोगे तो मिलेगा, एग्जम्प्टेड के लिए यूज करोगे तो नहीं मिलेगा। वो लॉजिक तो हमारा चल ही रहा है। ओके, तो इन मशीनरी 2 एग्जम्प्टेड के लिए यूज हो रही है, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अज्यूम करो अब मेरे पास एक मशीनरी 3 है, मेरे पास एक मशीनरी 3 है जो दोनों के लिए यूज हो रही है। यहां पहली चीज आई, I have a machinery which I'm using for both. I have a machinery which I'm using for both. Am I clear? तो पार्टली मिलना चाहिए, पार्टली नहीं मिलना चाहिए। अग्रीड और नॉट? अग्रीड और नॉट? आज अगर मैंने मशीनरी 3 परचेस करी है जो मैं टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड दोनों के लिए यूज कर रही हूँ, जो मैं टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड दोनों के लिए यूज कर रही हूँ, तो मुझे पार्टली मिलना चाहिए और पार्टली नहीं मिलना चाहिए। जितना टैक्सेबल पोर्शन के लिए यूज होता है उतना मिलना चाहिए, और जितना एग्जम्प्टेड के लिए यूज होता है उतना नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लॉजिक समझो क्या हो जाएगा। मशीनरी 3 आज एवरी मंथ मैं मशीनरी को यूज करूंगी और एवरी मंथ 5 सालों तक यूज करूंगी, और 5 सालों तक मैं क्या करूंगी? टैक्सेबल सप्लाई करूंगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई करूंगी। आई होप विथ मी, एम आई क्लियर? तो मुझे आज थोड़ी मालूम है कि मैं इस मशीनरी 3 से कितना टैक्सेबल सप्लाई होने वाला है, कितना एग्जम्प्टेड सप्लाई होने वाला है। डू आई नो? आई डोंट नो। तो किसी इनपुट के केस में तो क्या होता है, ये इनपुट टैक्सेबल सप्लाई के लिए गया, ये इनपुट एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए गया। एम आई क्लियर? पर मशीनरी का क्या होगा? मैंने क्रेडिट तो ले लिया, मैंने क्रेडिट तो ले लिया, मैं प्रैक्टिकल बन करेंगे, डोंट वरी। मैंने मशीनरी 3 का क्रेडिट तो ले लिया, पर listen to me, पर I am not going to use completely the machinery today। इसकी लाइफ 5 years है, 5 सालों तक मैं इसे टैक्सेबल सप्लाई करने वाली हूँ, इसे एग्जम्प्टेड सप्लाई करने वाली हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे हर महीने देखना पड़ेगा कितना टैक्सेबल और कितना एग्जम्प्टेड। तो जितना एग्जम्प्टेड के लिए मैंने यूज किया उतना हर महीने मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, विल गो इन डेप्थ। मैं क्लियर? ये तुम्हारा सिनेरियो ऐसा है। सपोज ये फर्स्ट 3 मशीन का सिनेरियो ऐसा है। अब आगे सिनेरियो और भी चेंज हो सकता है। सिनेरियो कैसे चेंज हो सकता है? जो मैंने मशीनरी
वन परचेस की थी, जो मैंने मशीनरी वन परचेस की थी ऊपर, मैं कह 1 साल पहले, 1 साल के बाद मैंने उसका पर्पस यूजेज चेंज कर दिया, अब मैं उसको टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड दोनों के लिए यूज कर रही हूँ। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा शांति समझना। मशीनरी वन मैंने क्या किया, शुरुआत में किस पर्पस के लिए ली थी, टैक्सेबल पर्पस के लिए ली थी, 1 साल बाद मैंने उसको क्या कर दिया, कॉमन पर्पस के लिए लेके आ गई। सेम कैन बी डन इन टू ऑल्सो, सेम कैन बी डन इन टू ऑल्सो। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे। एम आई क्लियर, हम कोशिश करेंगे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने के। एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम देखते कि हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, राइट। ओके, तो लेट्स गो अहेड, शांति समझेंगे, प्लीज जल्दबाजी मत करना। Attribution of credit on capital goods, usually partly for business and partly for non-business purpose, or partly for effecting taxable and partly for effecting exempted supply. The input tax credit in respect of capital goods being partly used for business and partly for other purpose, or partly for effecting taxable including zero rated supply and partly for effecting exempted supply. Simple है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है। अब बिजनेस पर्पस में टैक्सेबल है, जीरो रेटेड है, एग्जम्प्टेड है, इसका मिलेगा, इन दो का नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? shall be attributed to the purpose of business or effecting, shall be attributed to the purpose of business for effecting taxable supplies in the following manner. Step 1, determination of common credit. सी वहां पे हम 42 में कॉमन क्रेडिट निकालने जा रहे थे, यहां भी हम कॉमन क्रेडिट निकालने जा रहे हैं, शांति से समझना। आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स on capital goods used or intended to be used exclusively for non-business purpose or making exempted supply, and such amount will not be credited to the electronic credit ledger. मैंने सपोज कैपिटल गुड्स क्या परचेस किया, ए परचेस किया, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज किया, इसका टैक्स का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं इसको लेजर में लेके नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट टेक इट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सेकेंड, identify input tax on capital goods used or intended to be used exclusively for making taxable supply including zero rated supplies and declare the same in return, and such amount will be credited to the electronic credit ledger. अब मैंने exclusively मैंने एक और मशीन परचेस की भी, जो एक्सक्लूसिवली कहाँ यूज हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाई में यूज हो रहा है, इसका टैक्स का मुझे क्रेडिट मिलेगा। और सपोज इस पे मैंने 1 लाख पे किया है, इस पे मैंने 2 लाख पे किया है, और ये अमाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे जाएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आगे थर्ड, अदर कैपिटल गुड्स, other capital ITC to be created in the electronic credit ledger. समझना, identify the amount of input tax in respect of capital goods not covered in 1 and 2 above. मतलब 1 and 2 पर 1 कौन सा है, exclusively for exempted purpose, 2 कौन सा है, exclusively for business purpose। मतलब ये कौन सी कैपिटल गुड्स होगी, कॉमन हो गया, ये कौन सा हो गया, ये कॉमन हो गया। मतलब ये जो कैपिटल गुड्स है, नाइदर ही 1 में कवर होता है, नाइदर ही 2 में कवर होता है, मतलब ये दोनों को दोनों टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड दोनों में काम आ रहा होगा। दैट इज द कैपिटल गुड्स व्हिच आर यूज्ड और इंटेंड टू बी यूज्ड कॉमनली for making taxable as well exempted supply, business and non-business supply, denoted A and shall be credited to the electronic credit ledger। समझना, अज्यूम करो मैंने एक सी एक और कैपिटल गुड्स परचेस किया विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस, विच इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल ऑल्सो, जीरो रेटेड ऑल्सो, एग्जम्प्टेड ऑल्सो। और इस पूरे सी पे मैंने जो टैक्स पे किया है, सपोज वो 3 लाख रुपीस का है, और ये 3 लाख पूरा मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। मैम
पूरा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 3 lakhs में जो आपने टैक्स पे किया है उससे जो फिनिश गुड्स बनने वाला है जो मशीन से, वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, वो एग्जाम्प्टेड पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, उतना क्रेडिट आपको नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल अग्रीड नहीं मिलना चाहिए। पर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये पूरा की पूरा 3 लाख रुपीस कहाँ लेके जाऊंगी, ये पूरा की पूरा 3 लाख रुपीस कहाँ लेके जाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाऊंगी। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एम आई क्लियर? मतलब मैंने अभी अभी अपन सिंपल पता है एक एक स्टेप लेके चलेंगे। ए, exclusively for non-business purpose and exempted purpose. B, exclusively for taxable supply and zero rate supply. C, common. A को तो लेके जाना ही नहीं है, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। B को लेके जाना है और वो तो पूरा ही लेके जाना है, क्योंकि पूरा की पूरा कहाँ यूज हो रहा है, पूरा की पूरा कहाँ यूज हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। और C कॉमन पर्पस है। अभी मैं बाद में आगे जाऊंगा। अब इस 3 सिनेरियो को डिटेल, इस 3 सिनेरियो को कैसे करना है अपन देखते हैं। मैं क्लियर? ये 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, चेंज बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन नॉर्मल केस तो समझे, फिर चेंज पे आएंगे। मैं क्लियर? फिर चेंज पे आएंगे। आप समझना क्या हो रहा है। अज्यूम करो ये सब मैंने अभी जुलाई मंथ में परचेस करी, जुलाई 2020 में परचेस करी है। ये मैंने कब परचेस करी है? जुलाई 2020 में परचेस करी है। तो मेरा ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है समझना। मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या दिखेगा, 1 लाख नहीं दिखेगा, 2 लाख पूरा दिखेगा फॉर बी एंड 3 lakhs भी पूरा दिखेगा फॉर सी। ये दिखेगा, पर एक्चुअली पूरा 3 lakhs नहीं होना चाहिए। राइट, आई होप विथ मी। अब इनका क्या कहना है, अब कंप्लीटली अग्रीड। इनका कहना है आप लेजर में तो पूरा ले जाओ, फिर आप क्या करो, हर महीने समझना, हर महीने देखो आप कितना टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब कितना टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है सी से। देखो बी का कोई इशू नहीं है, बी का कोई इशू नहीं है, बी तो पूरा 2 lakhs मिलना चाहिए था, पूरा 2 lakhs मिलेगा, कोई इशू नहीं है। आई होप विथ मी। एक मिनट, मैं 3 lakhs को अगर आई डोंट वांट टू टेक इन, ठीक है ओके। अब मैं कहूँ अगर मैं बी का तो मुझे कोई इशू नहीं, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। बी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि बी इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस पर्पस, तो बी का मुझे पूरा क्रेडिट मिलना भी चाहिए। अब बी से जो मैं सप्लाई करती जाऊंगी उस पर मैं टैक्स कलेक्ट करती जाऊंगी, डिपार्टमेंट को पे करती जाऊंगी, वहां कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम इज विद दिस सी, 3 लाख रुपीज का जो क्रेडिट लिया है। अब आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम, आज मैंने मशीन खरीदी है, आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना इस मशीनरी से, समझना, कितना इस मशीनरी से मैं क्या करने वाली हूं, मैं पर्सनल सप्लाई करूंगी, मतलब नॉन बिजनेस पर्पस करूंगी, या कितना एग्जम्प्टेड करूंगी। अगर मैं सी की बात करूं तो बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस एंड बिजनेस पर्पस के अंदर टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई की मैं बात करती हूँ। एज ऑफ नाउ टुडे आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस। आज मशीनरी खरीदी है, अगले महीने में कितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज करूंगी, अगले महीने में कितना एग्जाम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज करूंगी, मुझे नहीं मालूम। तो मैं आज कैसे लाइबिलिटी बढ़ाऊं अपनी? तो इनका कहना है शांति रखो, पेशेंस। एक काम करो, हर महीने के तो आप एवरी मंथ टू मंथ तो आपको पता चलेगा ना। मैंने कहा एवरी मंथ टू मंथ तो मुझे पता चल जाएगा। तो उनका कहना है फिर आप एवरी मंथ क्या करते जाओ, रिवर्स करते जाओ। एवरी मंथ कैसे? उनका कहना है असेट की लाइफ इज 5 years, asset की लाइफ इज 5 years from the date of invoice। तो इन शॉर्ट 5 years मतलब how many months? 60 months। how many months means 60 months। तो जो सी है उसका 3 lakhs डिवाइड बाय 60 करूं तो एवरी मंथ कितना आया? 5000 आईटीसी आया। एवरी मंथ का कितना आईटीसी है? 5000। अब मैं क्लियर? एवरी मंथ का कितना आईटीसी है? 5000। आई होप यू विथ मी, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। अब आप देखो, सपोज क्वेश्चन में देकर रखा है कि जुलाई मंथ में टोटल सप्लाई 20 लाख का था। जुलाई मंथ में टोटल सप्लाई, टोटल टैक्सेबल नहीं है, टोटल ओके, टोटल सप्लाई जुलाई मंथ में कितना है? 20 लाख का है। एग्जम्प्टेड सप्लाई 5 लाख का है। पर्सनल पर्पस, पर्सनल सप्लाई अगेन 5 लाख का है। Am I clear?
मतलब इन शॉर्ट टोटल सप्लाई 20 lakhs का है, उसमें एग्जम्प्टेड 5 lakhs है, पर्सनल पर्पस 5 lakhs है, तो आप क्या बोलोगे 20 lakhs के लिए 5000 का क्रेडिट है, तो 10 lakhs के लिए कितना 50% हो गया, तो मतलब 10 lakhs into 5000 divide by 20 lakhs comes to 2500. इन शॉर्ट आपने 2500 का जो क्रेडिट है वो किसके लिए यूज किया, एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज किया, पर्सनल सप्लाई के लिए यूज किया, तो ये 2500 आप अपनी लाइबिलिटी लेजर में क्या कर दो, ऐड कर दो अलोंग विथ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमको भी नहीं करना है अलोंग विथ इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट की बात क्यों आई समझना बॉस, ये मैं कब ऐड करूंगी, सोचो क्रेडिट तो मैंने जब मशीन परचेस की तभी ले लिया, क्रेडिट तो मैंने तभी ले लिया 3 लाख का, अब मैं हर महीने रिवर्स करती जाऊंगी, तो इन शॉर्ट उस क्रेडिट को तो मैंने कब से यूटिलाइज भी कर लिया होगा ना, उस क्रेडिट को आज सपोज लॉजिकली सोचा जाए तो 3 लाख में से ये जो 2500 है, अभी तो अपने पूरे 60 महीने बचे हैं, अभी 60 मंथ हमारे पूरे बचे हैं, पर 3 लाख में से अगर मैं पहले महीने की बात करूं तो 2500 रुपए तो वो थे जो मेरे नहीं थे, जो मैं ऑलरेडी क्या कर चुकी हूँ, यूटिलाइज भी कर चुकी हूँ, तो इन शॉर्ट मैंने वो चीज यूटिलाइज करी जो मेरी नहीं थी, तो मुझे डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, पर डिपार्टमेंट ने यही तरीका बताया है कि आप क्या करो हर महीने रिवर्स करते चले जाओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम टिल हियर प्लीज रिप्लाई, थोड़ा टाइम लगेगा आज रूल 43 करने में, हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है रूल 43, प्लीज रिप्लाई करो, यहां तक समझा, ऑल रिप्लाई, ओके। अब ये जुलाई मंथ की बात है, ये कौन से मंथ की बात है, जुलाई मंथ की बात है, जुलाई मंथ में मैंने कितना रिवर्स किया 2500 रुपए, सपोज अगस्त मंथ की बात करें, अगस्त मंथ में मेरा टोटल टर्नओवर, व्हाट इज, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, क्या एक्सप्लेन करना अगेन, व्हाट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, सी एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, अगस्त मंथ में सपोज मेरा टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर है सपोज 20 lakhs एंड एग्जम्प्टेड टर्नओवर प्लस, सपोज एग्जम्प्टेड टर्नओवर मेरा 3 lakhs है एंड पर्सनल सप्लाई मेरा 2 lakhs है, आई होप विथ मी। अब समझना ये मेरा 5000 का जो अमाउंट है ये फिक्स हो गया है, मैंने 3 lakhs की असेट परचेस की थी, मैं 3 lakhs जो असेट परचेस की थी उस पर मैंने 3 lakhs का टैक्स पे किया था, वो बड़ा 3 lakhs पूरा मैं लेजर में ले गई, पर पूरा मुझे लेजर में ले जाना नहीं चाहिए था, पर दिस इज द वे, आप लेजर में पूरा 3 lakhs ले जाओ, फिर हर महीने देखो आप कितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, कितना एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, और फिर उतना अमाउंट आप आपकी लायबिलिटी में जोड़ते चले जाओ, तो पर मंथ करना पड़ेगा, तो अगर 3 लाख 5 इयर्स के लिए मतलब 60 मंथ्स के लिए, तो एवरी मंथ के लिए कितना होगा 5000, एवरी मंथ के लिए कितना होगा 5000, यहां तो कोई इशू है। अब मैंने जुलाई मंथ में चेक किया, जुलाई मंथ में मेरा टोटल सप्लाई कितना है 20 लाख, उसमें एग्जाम्प्टेड सप्लाई कितना है 5 लाख, पर्सनल सप्लाई कितना है 5 लाख, मतलब टोटल सप्लाई के लिए 5000 इज द क्रेडिट व्हाट आई हैव यूटिलाइज्ड, तो एग्जाम्प्टेड पर्सनल पर्पस के लिए कितना है 10 lakhs, तो 10 lakhs का कितना आएगा 50% है तो 2500 आएगा, ये 2500 मैंने क्या किया जुलाई मंथ में मैंने अपनी लाइबिलिटी लेजर में जोड़ दिया। अब अगस्त मंथ का फिर 5000, ये तो मुझे 5 सालों तक करना है, 60 मंथ्स तक करना है, एवरी मंथ टिल 5 years फॉर 60 मंथ्स मुझे करना पड़ेगा। अब सपोज नेक्स्ट मंथ कितना मेरा टोटल सप्लाई है 20 लाख, 20 लाख में से एग्जम्प्टेड कितना है 3 लाख, पर्सनल कितना है 2 लाख, दैट मीन्स 20 लाख के लिए 5000, तो 5 lakhs के लिए कितना, yes or no, आई होप विथ मी, 5 into 5 divided by 20, दैट मीन्स 1250, समझ में आया। तो अब अगस्त मंथ में मेरा कितना क्रेडिट पर्सनल पर्पस के लिए चला गया, कितना क्रेडिट एग्जाम्पल पर्पस के लिए चला गया 1250, तो अगस्त मंथ की लाइबिलिटी में 1250 रुपीज जोड़ दूंगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट,
आई होप यू गेटिंग मी, आई होप यू आर गेटिंग मी। ये ऐसे मैं 60 मंथ्स तक करती जाऊंगी बॉस। कैपिटल गुड्स के केस में क्या होता है, यू परचेज दैट मशीन टुडे, you purchase that machine today, but you keep on using for years, till 5 years, for 60 months. So today I don't know how much for taxable supply, how much for exempted supply. Get my point? Am I clear? This I'll be keeping on doing up to 60 months. And क्या मुझे बताओ, क्या प्रैक्टिकली गलत है क्या? अगर मैं एक राउंडली एक्सप्लेन करने की सोचूं, अगर मैं आपको बताऊं, सपोज सी है, मैंने 3 लाख का टैक्स पे किया, राइट? 3 लाख का टैक्स पे किया और मैंने 3 लाख पूरा क्रेडिट में ले लिया, और इस मशीन से मैं एग्जम्प्टेड भी सप्लाई करती हूँ, टैक्सेबल सप्लाई भी, मतलब मैं एग्जम्प्टेड वाला माल भी बनाती हूँ, टैक्सेबल वाला माल भी बनाती हूँ। अज्यूम करो, अगर मुझे बताओ, क्वेश्चन में देखा रखा है 7 to 30% का रेशियो है, 70 इज यूज फॉर टैक्सेबल एंड 30 इज यूज फॉर एग्जम्प्टेड। आप कितना ले गए पूरा? 3 लाख। लेके कितना जाना चाहिए था? 70%। तो 70% कितना होता है? 2,10,000। 30% कितना होता है? 90,000। तो आपको एक्चुअली लेके कितना जाना चाहिए था? आपको लेके कितना जाना चाहिए था? 210, पर आप ले कितना गए? पूरे 3। तो आप लाइबिलिटी में कितना जोड़ोगे? 30%, विच कम्स टू 90,000। यस और नो? यस और नो? रिप्लाई करो। क्या मैं पूरा 3 लाख ले जा रही हूं तो क्या वो एक्चुअली मेरा है? नहीं, उसमें से सिर्फ 2,10,000 मेरा है, इसलिए 90 को हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी में जोड़ देंगे। पर द प्रॉब्लम इज टुडे आई डोंट नो हाउ मच इज माय एग्जम्प्टेड सप्लाई, क्योंकि मंथली फिगर में कीप ऑन चेंजिंग। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, अभी तक तो कहानी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया एक्चुअली। बोले तो सिंपल पोर्शन चल रहा है, मैं एक एक स्टेप लेवल बढ़ाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू रश टुगेदर विद ऑल द लेवल्स। यहां तक समझा? यहां तक समझा? तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं, मैं 3 लाख रुपीस पूरा क्रेडिट लेजर में ले गई, एंड मंथली कितना होता है? 3 lakhs डिवाइड बाय 60 मंथ्स, मतलब कितना होता है? 5,000 पर मंथ होता है। तो मैं एवरी मंथ, अगर ये पता है मुझे, जैसे रफली आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूं, अगर मुझे सपोज एक आइडिया है कि रफली 30% मेरा कितना आता है? एग्जम्प्टेड सप्लाई आता है। आई होप विथ मी। तो एवरी मंथ 1,500 रुपए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फॉर 60 मंथ्स, एवरी मंथ 1,500 रुपए फॉर 60 मंथ्स, 1,500 into 60, 1,500 into 60 comes to what? 90,000 रुपीस। मैं पूरे 5 महीने में क्या कर दूंगी? अपनी लाइबिलिटी में जोड़ दूंगी अलोंग विद इंटरेस्ट। समझा? समझा? ये पॉइंट समझा? पर मैं ये हर महीने करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि 70 to 30 है, पर जरूरी नहीं है it will always be 70 to 30. It may keep on changing because you can't have same pattern of business every month. Am I clear? Am I clear? Getting my point? कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब ये एक सिनेरियो हुआ जहां मैंने आपकी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन बढ़ाया नहीं है। मैंने जुलाई 2020 में 3 असेट परचेस करी थी, ए, बी, सी। ए काय के लिए यूज की थी मैंने? मैं भूल गई। ए इज बीन यूज फॉर, ओके, exempted, बी टैक्सेबल, सी कॉमन। इस पे मैंने 1 लाख का टैक्स पे किया, इस पे मैंने 2 लाख का टैक्स पे किया, इस पे मैंने 3 लाख का टैक्स पे किया। इसका क्रेडिट नहीं लिया, इसका पूरा ले लिया, इसका भी पूरा ले लिया, इस सी का भी पूरा ले लिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बॉस, क्योंकि अब इसी डेटा को लेके आगे बढ़ने वाली हूं। ए का नहीं लिया, बी का पूरा ले लिया, सी का पूरा ले लिया, और सी का मैंने अब क्या कर रही हूं? 60 महीनों तक एवरी मंथ 5,000 रुपीज में मैं ये चेक करूंगी एग्जम्प्टेड कितना है, उतना मैं लाइबिलिटी लेजर में जोड़ती चली जाऊंगी। एम आई क्लियर? चलो अब लेवल आगे बढ़ाते हैं। अब लेवल आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट पढ़ लिया था, अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। चेंज कर रहे हैं। चेंज का मतलब क्या हो रहा है कि जब मैंने खरीदा था, मैंने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए खरीदा था। ए एग्जम्प्टेड, बी
टैक्सेबल, सी कॉमन। ऐसा सोच के लिया, पर जरूरी नहीं है ना कि मैं 5 साल तक वैसे ही करती रहूं। मुझे जैसा लगेगा, आज सपोज मैं कोई सामान खरीदती हूँ ऑफिस के लिए, बाद में लगता नहीं अरे एक ही सामान ऑफिस और घर दोनों के लिए काम आ सकता है, तो मैं अलग अलग 2 मशीनरी क्यों खरीदूं। मतलब आई कैन कीप ऑन चेंजिंग द यूजेज। एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है, चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज for non-business purpose or exempted supply to common use। समझना कौन सी असेट की बात चल रही है, ए की बात चल रही है। ए की, ए को मैंने क्या किया, जब मैंने खरीदा था, अब इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा अमेंडमेंट भी स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो जो मैंने पढ़ाया था उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, अब अमेंडमेंट भी स्टार्ट होने वाला है। मतलब ए जो मैंने परचेस की थी जुलाई 2020 में, ये ध्यान रखना, कब परचेस की थी, जुलाई 2020 में मैंने परचेस की थी। मैंने एक्सक्लूसिवली उसे एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए परचेस किया था, और मैंने उस पर टैक्स 1 लाख का पे किया था, जिसका आपने मुझे क्रेडिट नहीं दिया था। बढ़िया बात है, देने भी नहीं था। बट सपोज अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में आई फेल्ट नहीं यार, वाई ओनली टू यूज फॉर एग्जम्प्टेड पर्पस, आई कैन यूज दिस ए फॉर कॉमन पर्पस। अब आई कहानी में ट्विस्ट, जब मैंने ए परचेज किया था ऊपर, अब मैं इसको कैसे यूज करने वाली हूं, मैं ए को बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस एंड बिजनेस पर्पस के अंदर टैक्सेबल सप्लाई, जीरो एडेड सप्लाई एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज करूंगी। अब मैं यहां भी यूज करने वाली हूं, तो मुझे इस ए का क्रेडिट मिलना चाहिए टू द एक्सटेंट आई एम यूजिंग फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो एडेड सप्लाई। प्लीज शांति समझना, अब ए की कहानी चल रही है, बी एंड सी भूल जाओ, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मतलब केस वन क्या है हमारा, केस 1 जुलाई 2020 में 3 एसेट परचेस की थी, ए बी सी। ए एग्जम्प्टेड के लिए, बी टैक्सेबल के लिए, सी कॉमन के लिए। ए का क्रेडिट नहीं लिया, बी का पूरा ले लिया, सी का पूरा ले लिया, पर सी क्योंकि कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो सी में मैं एवरी मंथ, क्योंकि 60 मंथ्स तक यूज करने वाली हूँ, एवरी मंथ में चेक करूंगी कितना एग्जम्प्टेड के लिए, कितना टैक्सेबल के लिए, और जितना एग्जम्प्टेड के लिए यूज होगा उतना मैं एवरी मंथ आईटीसी का जो अमाउंट है वो लायबिलिटी लेजर में जोड़ते चले जाऊंगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये मेरा केस 1 था। अब मेरा केस 2 क्या हो रहा है, अगस्त 2021 में जो मैंने जुलाई 2020 में ए जो परचेस की थी एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्टेड पर्पस, अब मैं इसको कहां के लिए यूज करने वाली हूँ, कॉमन पर्पस के लिए यूज करने वाली हूँ। अब लॉजिक समझना, जब मैंने ए परचेस की आपने क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम पर्पस के लिए यूज करने वाली हूँ, पर अब अगले साल तो मैं इस ए को कॉमन पर्पस के लिए यूज करने वाली हूं, तो मुझे आई होप विथ मी, मुझे ये टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो डेट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो डेट सप्लाई में अब मैं जितना यूज कर रही हूं उसका तो क्रेडिट चाहिए कि नहीं चाहिए, रिप्लाई करो। इतना समझा? मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम जस्ट गोइंग बेबी स्टेप्स, मैं एक एक सिनेरियो कवर कर रही हूं। ये पॉइंट समझा कितना मैंने, आई होप विथ मी, राइट? अब समझना क्या हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू मूव। मैंने आपको क्या बताया, अब अमेंडमेंट के पहले क्या हो रहा था और अमेंडमेंट के बाद क्या हो रहा है। अमेंडमेंट एज सच कुछ अमाउंट से नहीं, लॉ में कुछ इशू था, लॉ की लैंग्वेज में इशू था, उस लैंग्वेज को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो उन्होंने पहले क्या कर रहे थे, अमेंडमेंट के पहले 1 अप्रैल 2020 के पहले की बात थी। मैंने आपको बताया असेट की लाइफ कितनी है, 5 इयर्स है। असेट की लाइफ कितनी है, 5 इयर्स है। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन लगाने जाओगे तो कितना परसेंट लगाओगे, एवरी ईयर 20% लगाओगे, तो एवरी क्वार्टर कितना लगाओगे, 5%। तो इनका कहना है, समझना मैं पहले की बात कर रही हूं, इनका कहना है आपने जुलाई 2020 से अगस्त 2021 आपने इसको कैसे यूज किया, एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज किया। प्लीज समझना, मुझे अमेंडमेंट बताना, अमेंडमेंट के पहले पुराना थोड़ा बताना जरूरी है। क्या होता है, जिस अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आता है उस अटेम्प्ट के लिए मुझे पुराना बताना चाहिए।
वंस योर अटेम्प्ट इज ओवर, अब मैं उसके बाद May 21 वालों को नहीं बताऊंगी कि पहले क्या था। ऐसे तो पूरी लाइफ टाइम अमेंडमेंट चलते हुए आ रहे हैं। फिर तो मैं सर्विस टैक्स भी पढ़ाऊं कि सर्विस टैक्स के बाद जीएसटी आया, पर जिस अटेम्प्ट के लिए वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है, उस अटेम्प्ट में एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाई दिस अमेंडमेंट केम। एम आई क्लियर? तो पहले क्या होता बिफोर, उन्होंने बोला जुलाई 2020, सपोज 15 जुलाई 2020 टू 21 अगस्त 2021, आपने इतना टाइम एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए यूज किया है? एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज किया है। किस पर्पस के लिए यूज किया है? एग्जम्प्टेड पर्पस। तो कितने क्वार्टर होते हैं? अब क्वार्टर वही क्वार्टर होंगे जो हमारे कैलेंडर ईयर के। अप्रैल में जून हटा दो, जुलाई अगस्त सितंबर इज वन क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज सेकंड क्वार्टर, जन फेब मार्च थर्ड क्वार्टर, अप्रैल मई जून फोर्थ क्वार्टर, जुलाई अगस्त, भले ही अगस्त में 21 दिन, मतलब जुलाई पूरा और 21 दिन अगस्त के, एवरी क्वार्टर और पार्ट फॉरगेट 21 अगस्त। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एक दिन भी अगर मैंने अगले क्वार्टर का यूज कर लिया और पार्ट का मतलब होता है अगर आपने एक दिन भी अगले क्वार्टर का यूज कर लिया तो आपको उसका डेप्रिसिएशन या उसका आईटीसी की बात चल रही है यहाँ पे। तो कितने क्वार्टर हुए? जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जन फेब मार्च, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, मतलब इन शॉर्ट 5 क्वार्टर। इन शॉर्ट हाउ मेनी क्वार्टर? 5 क्वार्टर्स। समझ में आ रहा है? भले ही जुलाई महीने का मैंने जून में खरीदा ही नहीं, पर एक दिन भी क्वार्टर का यूज हो गया तो 5 एक क्वार्टर मान लेंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर नहीं, जून, हाँ अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जन फेब मार्च, अप्रैल मई जून एंड जुलाई अगस्त, 5 क्वार्टर्स। एवरी क्वार्टर का कितना परसेंट? 5%। एवरी क्वार्टर का कितना परसेंट? 5%। तो टोटल कितना परसेंट हुआ? 25%। मतलब 1 लाख रुपीस का 25%, मतलब 25,000 रुपीज मैंने एक्सक्लूसिवली कहां के लिए यूज किया? एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज किया। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? 5 क्वार्टर, जुलाई 20 से अगस्त 21 तक मैंने एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए यूज किया है? एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज किया। किस पर्पस के लिए यूज किया? एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज किया। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? तो अब एग्जम्प्टेड पर्पस मतलब कितना अमाउंट हुआ? 5% पर क्वार्टर। तो 5 क्वार्टर कितना परसेंट? 25%। तो 1 लाख का 25% मतलब 25,000 रुपए एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड के लिए यूज किया। तो इसका तो मुझे क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए, इसका तो मुझे क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए, राइट? बचा कितना? 75,000। बचा कितना? 75,000, जो अब मैं अगस्त 21 से कॉमन पर्पस के लिए यूज करने वाली हूँ। Am I clear? जो अब मैं अगस्त 21 से कितने क्वार्टर चले गए? 5 क्वार्टर चले गए, 55 क्वार्टर्स are left. Am I clear? I hope you are with me. I hope you are with me. Get your point? कितने क्वार्टर्स चले गए? 5 चले गए। Am I clear? 55 नहीं, 55 62 months था, 62 months था। In a year 4 क्वार्टर, तो 5 years में 20 क्वार्टर्स, तो 15 क्वार्टर तो चले गए, 5 क्वार्टर चले गए, कितने बचे? 15 बचे। Am I clear? Am I clear? Am I clear? तो ये 70,000 अब मैं बैलेंस लाइफ जो उसकी बची है, बैलेंस लाइफ जो इसकी बची, हमने लाइफ कितनी मान के चली है? 5 years। 5 years मतलब 1 quarter is equal to 4, तो 5 years मतलब 20 quarters। Am I clear? बैलेंस लाइफ मैंने क्या मान के चलूंगी कि ये कॉमन पर्पस के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे इशू क्या हो रहा था? ये लोग क्या कर रहे थे? ये 75,000 ये बोल रहे थे कि ये अमाउंट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाओ। ले जाना चाहिए कि ले जाना चाहिए? हाँ या ना? जल्दी रिप्लाई करो। ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? हाँ या ना? 1 लाख रुपए मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि 1 लाख रुपए में जब खरीदा था, मैं एग्जाम्प्टेड पर्पस के लिए खरीदा था, तो लेजर में ले जाने की बात नहीं आती थी। पर अब मैं कॉमन के लिए यूज करूंगी तो लेजर में ले जाना पड़ेगा। तो पहले ये अमेंडमेंट की पहले की बात चल रही है। अमेंडमेंट के पहले मैं कितना लेजर में ले गई? 75,000 में ले गई। अब यहाँ पे इशू क्या हो रहा था? वो 75,000 हमको डिवाइड बाय 60 करवा रहे थे।
लाइफ 60 बची नहीं है ना। 60 मंथ्स तो कब होती, जब आप डे 1 से कॉमन के लिए लेके जाते हैं। आपने ऑलरेडी अपने जुलाई से अगस्त तो आप कॉमन पर्पस के लिए यूज कर चुके हो। आप कॉमन पर्पस के लिए क्या कर चुके थे, जुलाई से अगस्त आप एग्जामिनर पर्पस के लिए यूज कर चुके थे। तो बेसिकली ये 60 से डिवाइड नहीं होना चाहिए था, ये 60 से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। ये कितने से डिवाइड होना चाहिए था, बैलेंस इयर्स लेफ्ट, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई करो। राइट, इसीलिए ये कंफ्यूजन था। ये हम लोग जितनी बार पढ़ते थे ना उतनी बार हम क्लास में डिस्कस करते थे, देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, गेटिंग माय पॉइंट, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट। अब मैं क्लियर, तो इसका इन्होंने, इस इशू का इन लोग ने सॉल्यूशन लाके दे दिया, शांति समझेंगे। इन्होंने बोला ओके सेम थिंग, 15 जुलाई से लेके 2020 टू 21 अगस्त 2021 आपने क्या किया, एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज किया और बाद में आप इसको कॉमन के लिए लेके आ गए। मैं क्लियर, इन्होंने बोला जिस दिन आप इसको कॉमन के लिए लेके आ रहे हो उस दिन पूरा की पूरा 1,00,000 रुपए लेजर में ले जाओ, पूरा की पूरा 1,00,000 रुपए लेजर में ले जाओ और हाथों हाथ लाइबिलिटी लेजर में 25,000 रुपए ले जाओ। आई होप यू गेटिंग मी। नेट इफेक्ट 75,000 आ गया कि नहीं आ गया। पहले हम कितना लेके जाते थे, 75 लेके जाते थे लेजर में, लेके कितना जाते थे, 75 लेके जाते थे। इनका कहना है नहीं, आप पूरा 1 लाख ले जाओ और हाथ तो हाथ 25,000 लाइबिलिटी में जोड़ दो। और अब क्या करो, इस 1 लाख रुपीस को 60 से डिवाइड करना, इस 1 लाख रुपीस को किससे डिवाइड करना, 60 से डिवाइड करना। वेट, which comes to 1667, which comes to 1667। am I clear? और अब ये 1667 ये क्या है, ये हमारा एवरी मंथ वाला अमाउंट हो गया, एवरी मंथ वाला अमाउंट हो गया। अब इस 1667 को क्या करो, इसमें देखो टोटल के लिए इतना, तो एग्जम्प्टेड टर्नओवर के लिए कितना, am I clear? और कितनी लाइफ बची है, कितनी लाइफ बची है, आई होप विथ मी, कितनी लाइफ बची है, उतनी लाइफ के लिए आप हर महीने कैलकुलेट करोगे। सी पर मंथ आपको, कि मैंने टोटल लिया है 1 लाख, ऊपर यहां पे इशू क्या था, आप 75,000 डिवाइड बाय 60 करें, दैट वाज रॉन्ग। यहां पे आप 1 लाख, क्योंकि टोटल 1 लाख था तो तब 60 मंथ समझ में आता है, आप 1 लाख डिवाइड बाय 60 करो। पर ये जो फॉर्मूला आप करने वाले हो ये सिर्फ बैलेंस ईयर्स के लिए करोगे, बैलेंस पीरियड के लिए करोगे। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू 5 इयर्स होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू 5 इयर्स होता है। तो आपने जुलाई में परचेस की ना, तो जुलाई से अगस्त जितना निकल गया, जुलाई से अगस्त जितना निकल गया उतना छोड़ दो, उसके बाद बचे हुए पीरियड के लिए ये फॉर्मूला करोगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई करो। पहले क्या होता था, आई यूज्ड टू टेक इन माय लेजर ओनली 75,000 एंड जब मैं 75,000 को 60 से डिवाइड करती थी ना, तो प्रॉब्लम है कि ये कैलकुलेशन मतलब समझ में नहीं आता था हमको कि 75 को 60 से डिवाइड क्यों करूं, ये तो उतने से ही डिवाइड होना चाहिए जितनी लाइफ बची। Am I clear? पर इन्होंने ये जो लॉ में क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी इस अमेंडमेंट में लेके आ दी कि आप पूरा 1,00,000 रुपए क्रेडिट लेजर में ले जाओ, 25,000 रुपए, 25,000 कहां से है, समझ आया, आप लाइबिलिटी लेजर में ले जाओ, तो नेट इंपैक्ट तो 75 ही है। बट जब मैं ये पर मंथ का कैलकुलेशन की बात कर रही हूं तो 1 लाख डिवाइड बाय 60 कर दो, विच कम्स टू 1667। और ये जो आप फॉर्मूला लगाने जाओगे ये आप कितने पीरियड के लिए लगाओगे, बैलेंस पीरियड लेफ्ट। आई होप आई एम वेरी क्लियर। कोई कंफ्यूजन है मुझे बताओ, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे बताओ मुझे। बस तुम लोग को ना बहुत हाई लेवल नहीं आएगा, पर ये सब आएगा, ये हाई लेवल में नहीं आता है। हाई लेवल कब होगा, जब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन में दे दो ना, दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल। जब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन में दे दो, दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल। तुम्हारे लिए एग्जाम में क्या करेंगे, एक सिचुएशन डाल देंगे, तब इतना पढ़ते हैं।
क्या लिखा है, चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जाम सप्लाई टू कॉमन यूज, मतलब मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए परचेस किया था, अब मैं उसको कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ. Where capital goods which were initially covered under one above, ऊपर जो वन था ये exclusively for non business purpose था, मैं क्लियर. Where capital goods which are initially covered under one above get subsequently covered in third common है. Then the input tax in respect of such capital goods denoted A, जो भी input tax आपने 1 लाख shall be credited to the electronic credit ledger, पूरा 1 लाख लेजर में ले जाओ. Further, the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods was covered by denoted as above, मतलब जितना पीरियड आपने उसको किस पर्पस के लिए यूज किया, एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए यूज किया, मैं क्लियर, उतना अमाउंट को अपन क्या बोलेंगे, ये 25,000 की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, 25,000 की बात चल रही है. TI shall be calculated at the rate of 5% points every quarter or part thereof, and that will be added to the output tax liability of the tax period in which such claim is credit is claimed. 1 लाख पूरा ले गए क्रेडिट लेजर में, 25,000 कहां ले गए, लाइबिलिटी लेजर में. Further, the amount of TIE shall be computed separately for input tax rate, central tax, state tax, मतलब इन शॉर्ट ये जो TI है ये आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे, सेंट्रल टैक्स तो अलग निकलेगा, स्टेट टैक्स अलग निकलेगा, मतलब टैक्स वाइज अलग अलग निकालोगे. अब अमेंडमेंट समझो क्या हुआ है. प्रायर टू 1 अप्रैल में हम क्या कर रहे थे, पहले 75,000 लेके जा रहे थे, और अब भी क्या लेके जा रहे हैं, यहां पे 1 लाख लेके जा रहे हैं, और लाइबिलिटी लेजर में 25,000 लेके जा रहे हैं. Am I clear? तो prior to 1 April 2020, the ITC of such capital goods which was earlier used for exclusively non-business purpose and for exempted supplies and now utilized for taxable and exempted supply was arrived at calculating by reducing the input tax, and the amount shall be credited to electronic ledger. इनका क्या कहना है, हम क्या करते थे, जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था, जिसको हम किस पर्पस के लिए लेके आ गए, कॉमन पर्पस के लिए लेके आ गए, तो हम फिर क्रेडिट का अमाउंट निकालते थे माइनस करके, कितना माइनस करके, 5% पर क्वार्टर और पार्ट thereof, तो हम कितना ले जाते थे, 75,000 लेके जाते थे. ये हम अप्रैल 1 से पहले करते थे. बट आफ्टर अप्रैल फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा 1 लाख will be credited to electronic credit ledger, and thereafter the ineligible 25,000 जो ineligible है attributable shall be added to the output tax liability. The formula of calculating of ITC in both the cases, ऊपर वाला केस and नीचे वाले केस में 5% point और part every quarter. Yes, कोई तकलीफ यहाँ तक कोई तकलीफ, सिर्फ नेट इम्पैक्ट वही है, ऊपर 75 लेके जाते थे, यहाँ 1 लेके जा रहे क्रेडिट में, 25 लेके जा रहे लाइबिलिटी में, तो नेट इम्पैक्ट तो 75 ही है. Am I clear? पर इसलिए किया गया, जो मैंने आपको बताया ना, हमारा इशू ये था, ये इशू हो रहा था हमको. आगे क्या बोला, ओके, add together the amount of A credited to electronic credit ledger in respect of common capital goods. A का जो अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख को कहां ले जाओ, कॉमन कैपिटल हो गया, वो कॉमन कैपिटल कुछ हो गया, whose useful life remains during the tax period to arrive at common credit TC. हमें अब TC निकालना है. What is TC? अब देखो क्या हो रहा है, with effect from 1st April 2020, following line which is more clarificatory has been inserted in respect of common capital goods whose useful life remains. ये इन्हें लाइन जोड़ दी, whose useful line remains, पहले से यूजफुल सीधे 60 की बात चल रही थी, whose useful life remains during the tax period, thus making it clear that input tax credit in respect of capital goods whose useful life that out of 5 years remains shall only be arrived to add in the common credit TC. हम उसी को कॉमन में लेके जाएंगे जिसकी लाइफ 5 साल में कुछ बची है. अभी ये 6 वाला पॉइंट तुम्हें बात समझाएगा. अब आगे, अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कॉमन क्रेडिट आ गया है,
कॉमन क्रेडिट कैसा है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूं सॉरी, मैं अगर इसी क्वेश्चन में देखूं, ये बॉस ये तो पिछले साल से कॉमन में ही है, हाँ है ना, ये तो मेरा पिछले साल से कॉमन में ही है, 3 लाख डिवाइड बाय 60 कम्स टू 5000, ये तो ऑलरेडी मेरा कॉमन में है, मैं क्लियर। अब एक और मशीन आ गई जिसका 1 लाख डिवाइड बाय 60 किया, जो कितना है 1667, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट, जस्ट अ सेकंड। ओके, जिसका क्या आया 1667, मतलब अब मेरे पास 2 एसेट हो गई है, एक ए और एक सी, ए का 5000 है और सी का 1667 है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? आई होप यू आर विथ मी। यस और नो प्लीज रिप्लाई करो, यस और नो। ए का कितना 5000, सी का कितना 1667, टोटल कितना हुआ 6667, am I clear? अब मैं अगस्त 21 में, अगस्त 21 में मेरे पास 2 एसेट है जिसका टोटल कितना हुआ 6667, तो अब मैं देखूंगी अगस्त महीने में टोटल टर्नओवर कितना, एग्जम्प्टेड टर्नओवर कितना, एंड एग्जम्प्टेड वाला पोर्शन जितना भी होगा उसका जो टैक्स निकलेगा उसको मैं लायबिलिटी लेजर में जोड़ दूंगी, हाँ या ना? यस, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो ये इन्होंने क्या बोला, टीएम जो मंथली निकालते, कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाय 60 कर लो, टीसी क्या है कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाय 60 कर लो तो मेरा मंथली कॉमन क्रेडिट आ जाएगा, अब क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ एनी कैपिटल गुड्स शैल बी कंसीडर्ड 5 years the date of invoice and said formula shall be applicable during the useful life। बॉस मैंने भले ये डिवाइड बाय 60 करा है पर ये फॉर्मूला जो मैं एग्जम्प्टेड और टर्नओवर से कैलकुलेट करूंगी वो सिर्फ मैं यूजफुल लाइफ करूंगी, am I clear? am I clear? Analysis the minimum income by adding the explanation it has been clarified that useful life of any capital goods should be 5 years from the date of invoice। The said formula shall be applicable during useful life of said capital goods, that is 5 years from the date of invoice। Earlier, due to bad drafting or law, wrong calculation had to be done by taking a period of 5 years। पहले हम क्या कर रहे थे, कन्वर्जन से 5 years ले रहे थे, 3 साल मैंने एसेट, सपोज इस वाले पीरियड में मैंने जुलाई से अगस्त कॉमन, जुलाई से अगस्त एग्जाम डेट के लिए यूज कर ली, अगस्त से मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो कन्वर्जन से वापस 5 years मान रहे थे, नहीं यार ऑलरेडी 5 क्वार्टर तो चले गए थे, am I clear? am I clear? yes, yes। Earlier, due to bad drafting of law, wrong calculation had to be done by taking a period of 5 years from the date of conversion of use of capital goods, irrespective of the fact if already been used for some prior period for some other purpose। am I clear? am I clear? फिर स्टेप 3 क्या है कि बॉस हमें क्या निकालना है कि तो ये मंथली हो गया, अब मंथली में एग्जाम्प्टेड कितना, टोटल कितना, तो टोटल के लिए इतना और एग्जाम्प्टेड के लिए कितना, तो ये जो मैं टीई आएगा वो मैं क्या करूंगी अपनी लायबिलिटी लेजर में जोड़ दूंगी। Am I clear? Okay, let's understand this with a practical aspect कि हम क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है। See, understand? पहले क्या हो रहा था कि मेरी 1 लाख की जो एसेट थी उस पे मैंने 25,000 मतलब कितने क्वार्टर्स, 5 क्वार्टर मैंने किस पर्पस के लिए यूज कर लिया था, किस पर्पस के लिए यूज कर लिया था, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। दैट मीन्स 5 क्वार्टर इंटू 5% कितना होता है 25%, तो 1 लाख का 25% हटा दो विच कम्स टू 25,000, राइट। तो पहले क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे 75,000 हम हमारे क्रेडिट लेजर में लेके जाते थे, दैट वाज स्टिल ओके, पर इसको ये लोग डिवाइड किससे करते थे, 60 से डिवाइड करते, डिवाइड किससे करते थे 60 से डिवाइड करते, विच वॉज नॉट ओके। बस अभी लाइफ थोड़ी 60 मंथ्स बची है, ऑलरेडी आप 5 क्वार्टर इंटू एक क्वार्टर में कितने मंथ्स 3 मंथ्स, मतलब आप 15 मंथ्स तो ऑलरेडी यूज कर चुके हो, 15 मंथ्स आप ऑलरेडी यूज कर सकते थे। एक्चुअली लाइफ 60 नहीं बची थी, लाइफ 45 बची थी, 45 बची थी, पर ये लोग क्या कर रहे थे 75,000 डिवाइड बाय 60 किया,
75,000 डिवाइड बाय 60 किया विच कम्स टू 1250 और अज्यूम करो मेरा 70:30 का रेशियो है, 70% टैक्सेबल सप्लाई, 30% एग्जाम सप्लाई, तो 1250 का 30% कितना होता है? 1250 का 30% होता है 375 रुपीज। 375 रुपीज में 60 मंथ्स तक इंटू 60 दैट मीन्स 22,500 में 60 मंथ्स तक रिवर्स, टोटल रिवर्स होगा। दिस वॉज वी डूइंग, मतलब एक्चुअली यहां पे होना क्या चाहिए था? यहां पे होना क्या चाहिए था? 75,000 डिवाइड बाय 45। वाई 45? क्योंकि ऑलरेडी मेरा 15 मंथ्स, 5 क्वार्टर का मैं ऑलरेडी 25,000 निकाल चुकी हूँ। 5 क्वार्टर का मैं ऑलरेडी 25,000 निकाल चुकी हूँ, मतलब 3 मंथ्स के हिसाब से देखो पर क्वार्टर, तो 15 महीने मतलब 45 महीने बचते हैं। कितने महीने बचते हैं? 45 महीने से 75,000 डिवाइड बाय 45 करूं मैं तो 1630 आता। 1630 का अगर मैं 30% लेती इक्वल टू इंटू 0.3 विच कम्स टू 489 और 489 रुपीज को अगर मैं 45 मंथ तक अगर रिवर्स करती तो राउंड ऑफ करूं मैं, इट्स ऑल गोइंग ऑन राउंड ऑफ ओनली, क्योंकि एक्चुअली मैंने 489 के बदले 490 लेना चाहिए मुझे। 490 लूं अगर मैं, 490 into 45, 490 into 45 comes to somewhere 20,050 rupees, basically round off के कारण हो रहा है। am I clear? I hope with me 75,000 divide by 45 comes to, अच्छा यही गलत लिया ना बॉस, गलती नहीं बताते हो। ये कितना आया? 1667। ये कितना आया? 1667 एंड 1667 का 30% कितना होता है? इंटू 0.3 कम्स टू 500 एंड 500 इंटू 45 कितना होता है? 22,500। आना सेम था पर प्रैक्टिकली गलत है। मैं 60 मंथ्स तक क्यों रिवाइज करूं? ये समझा यहां तक? ये समझा यहां तक? रिप्लाई करो, ये समझा? ये वाला पॉइंट समझा? हाँ करेक्ट, 1667 करेक्ट। अब मैं ये यहां तो समझा। एक्चुअली होना ये चाहिए था बट हो ये रहा था, भले एंड आंसर सही आ रहा था, बट वाज नॉट करेक्ट। तो ने बोला कि नहीं, लेट्स गो फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या किया? 1 लाख ले लो। 1 लाख डिवाइड बाय 60 कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। 1 लाख डिवाइड बाय, जब मैंने 60 किया, 1 लाख डिवाइड बाय 60 किया तो कितना आया? 1667। 1667 का 30% कितना होता है? 500 रुपए। और 500 रुपए कितने महीने बचे? 45 मंथ्स बचे, 22,500 रिवर्स होगा। अब मुझे बताओ, एम आई करेक्ट? रिप्लाई करो, समझ में आया? आपको जो बचे हुए मंथ वो कैसे निकालना है? जितने क्वार्टर यूज हो गए, तो हर क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। मैंने 5 क्वार्टर रिवर्स कर दिया था 25,000। एम आई क्लियर? 5 क्वार्टर का रिवर्स कर दिया था 25,000, तो एक क्वार्टर का 3 मंथ्स, तो 5 क्वार्टर का 15 मंथ्स, बचे कितने मंथ्स? 45 मंथ्स। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले ये हो रहा था, दिस वॉज हैपनिंग, बट दो आंसर एंड इज कमिंग 22,500, बट वॉज इट करेक्ट? आप 5 क्वार्टर्स मतलब 15 महीने किसी और पर्पस के लिए यूज कर चुके हो, फिर आप 60 मंथ्स बोलते हो, और मतलब 60 प्लस 15 आप तो 75 मंथ्स लाइफ मांग रहे हो, विच इज रॉन्ग। एम आई क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो देखो अभी तक हमने 2 सिनेरियो कवर किया है। केस 1 बहुत सिंपल था, जब आपने परचेस किया, आपने किस पर्पस के लिए परचेस किया वैसे ट्रीटमेंट कर लो। तो केस 1 हमारा क्या था? ए एसेट, बी एसेट, सी एसेट। ए एग्जम्प्टेड, बी टैक्सेबल, सी कॉमन। 1 लाख का टैक्स पे किया, 2 लाख का टैक्स पे किया और 3 लाख का टैक्स पे किया। और ये तो जिस दिन परचेस किया, जुलाई 2020 में परचेस किया। प्लीज ये कॉपी करो, ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। केस 1, एवरी केस को क्वेश्चन मांग के सॉल्व करना, हमें क्लियर? तो जुलाई 2020 में जब परचेस ही किया है मैंने, उसी मंथ परचेस किया है,
इसका क्रेडिट नहीं लूंगी, इसका पूरा लूंगी, इसका भी पूरा लूंगी, क्योंकि उसी मंथ की बात है। तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा, 5 लाख जाएगा। कितना जाएगा, 5 लाख। टुगेदर मत लिखना, बस सिर्फ लिखने के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद लाइबिलिटी लेजर में एवरी मंथ क्या होगा, इस बी का कुछ नहीं होगा, 3 लाख की बात आएगी। 3 लाख डिवाइड बाय 60 which comes to 5,000, which comes to 5,000. I am assuming कि मेरा हर महीने 70:30 का रेशियो है, 70 टैक्सेबल 30 एग्जम्प्टेड। तो 5,000 इंटू 30 कितना होता है, 1,500 रुपए। मैं 60 मंथ्स तक 1,500 रुपए प्लस इंटरेस्ट एवरी मंथ लाइबिलिटी में जोड़ते चली जाऊंगी। एम आई क्लियर? 60 मंथ्स तक, कितने महीने तक, 60 मंथ्स, क्योंकि वो डे वन ही है। एम आई क्लियर? तो अगर मैं 1,500 रुपए इंटू 30 करती हूँ, आई होप विथ मी, सो नॉट 30, 60 इंटू 60 करती हूँ, कैलसी सामने रखो बॉस, इस वाले क्वेश्चन में कैलसी इंपॉर्टेंट है। 1,500 इंटू 60 कम्स टू 90,000, और एक्चुअली 70:30 का रेशियो बोला है, मतलब 3 लाख का 30%, मतलब 90,000 मुझे नहीं मिलना चाहिए। एम आई क्लियर? ये केस 1 हुआ। फिर केस 2 क्या हुआ, हमने चेंज किया। क्या किया, ए को सी की तरफ ले गए, मतलब ए को भी कॉमन पर्पस के लिए ले गए। कब ले गए, अगस्त 2021। आपको ये पता होना जरूरी है कि कब ले गए। एम आई क्लियर? तो देखो, ए बी सी की बात करते। बी तो मेरे लेजर में था ही, सी भी मेरे लेजर में था ही। एम आई क्लियर? सी का मंथली बैलेंस कितना है अपना, सी का मंथली बैलेंस कितना है अपना, 5,000। सी का मंथली बैलेंस कितना है अपना, 5,000। हाँ या ना, सी का मंथली बैलेंस कितना है अपना, 5,000 है कि नहीं है, राइट। अब ए का कितना है, 1 लाख। तो उन्होंने क्या बोला, ए को पूरा यहां ले जाओ, और क्योंकि आपने 5 क्वार्टर यूज कर लिए तो 25,000 यहां ले जाओ, और उसके बाद क्या करो, 1 लाख डिवाइड बाय 60 करो, which comes to 1667, which comes to 1667। तो इसका मंथली बैलेंस कितना हो गया, 1667। तो इसका भी 30%, अज्यूम सबका सेम ही चल रहा है, 30%, मतलब 1667 का 0.3 कम्स टू 500 रुपए। इसका भी 30% आता है, 1,500 रुपए। एम आई क्लियर? ये 1,500 रुपए आप 60 महीनों तक रिवर्स करोगे, और ये 500 रुपए आप 45 मंथ्स तक रिवर्स करोगे, ये आप 60 मंथ तक करोगे फ्रॉम डे 1, ये आप 45 मंथ्स तक करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 15 मंथ्स किसी और पर्पस के लिए यूज कर चुके हो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आगे बढ़ू, कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आई बॉस, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। आई होप विथ मी। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, प्लीज रिप्लाई, अदर्स ऑल्सो। ओके, नाउ एक और बचा है, ये 6 वाला, चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल पर्पस। अब बी की बात चली, बी, ये बी वाली, ये जो बी वाली मैंने जो टैक्सेबल पर्पस के लिए खरीदी थी मैंने, अब मैंने उसको कॉमन पर्पस में शिफ्ट कर दी। समझा, समझा? Change from exclusive use of taxable including zero-rated supply to common purpose, where capital goods which was initially covered in 2 above and are subsequently getting covered in 3। आप समझना, बहुत सिंपल है, समझते। थर्ड केस लेते, केस थर्ड, केस 3 लेके चलते हैं, और अज्यूम करो सितंबर 2022 को आपने बी एसेट को कॉमन पर्पस के लिए शिफ्ट कर दी, और ये बी आपने कब खरीदी थी, जुलाई 2020 में ली थी, और किस पर्पस के लिए ली थी, बिजनेस पर्पस के लिए ली थी। किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस। प्लीज समझना, शांति समझना,
अब लॉजिकली समझो, जब मैंने बिजनेस और इस पर हमने 2 लाख का टैक्स पे किया था, राइट, 2 लाख का टैक्स पे किया था, तो मैंने इस 2 लाख रुपए को उसी दिन जुलाई 2020 में ही पूरा लेजर में ले गई थी, क्योंकि वो मेरा प्रॉपरली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा था। अब मुझे लेजर में कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जुलाई 2020 में ही ले जा चुकी हूं। बट जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2022 बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एंड ऑनवर्ड्स कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो अब मैं पूरे 2 लाख के लिए एलिजिबल नहीं हूं। हाँ, जुलाई टू सितंबर कितने क्वार्टर होते हैं, पहले क्वार्टर गिनो, अप्रैल में जून तो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 2020 के 2 क्वार्टर, 2021 के 4 क्वार्टर, तो 2021 के 4, 2020 के 2 मतलब हो गए 6, और 22 के अप्रैल में जून जुलाई अगस्त जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 2022 के 3 क्वार्टर। तो इन शॉर्ट 2 + 4 + 3 दैट मीन्स 9 क्वार्टर्स। ये समझा? 20 जुलाई 2020 के 2 क्वार्टर, 21 के 4 क्वार्टर, 22 के 3 क्वार्टर, टोटल 9 क्वार्टर, तो मैंने एग्जैक्टली उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, मतलब 9 × 5 is 45%। तो 2 लाख रुपए का 45%, समझना, 2 लाख रुपए का इज 90,000। ये 90,000 तो मैं पूरी एलिजिबल थी, बचा कितना, बैलेंस कितना, 1,10,000। Am I clear? अभी 1,10,000 मैं पूरी एलिजिबल नहीं हूं, क्योंकि अब मैं इसको कॉमन पर्पस के लिए भी यूज कर रही हूँ, मतलब इसको कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ, तो पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड। Am I clear? प्रेजेंटेशन समझना, देखो, आई डोंट हैव टू टेक एनीथिंग टू लेजर, मेरे क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी 2 लाख जा चुका है, मुझे क्रेडिट लेजर में कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी इन लेजर। Am I clear? अब मुझे इस असेट से रिलेटेड जो मैं एग्जामिनेड पर्पस के लिए यूज करने वाली हूँ, उसको मुझे लाइबिलिटी लेजर में जोड़ना है। प्रेजेंटेशन देखना है, कैलकुलेशन में क्या होगा देखना, मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ भी लेके नहीं जाऊंगी, पर मैं कैलकुलेशन करूंगी मेरा कॉमन क्रेडिट, समझना, बी का टोटल कितना, पूरा 2 लाख लिखो, यहाँ पे पूरा 2 लाख लिखो, समझना, पूरा 2 लाख लिखा मैंने, डिवाइड बाय 60 किया, 2 lakhs डिवाइड बाय 60 किया, which comes to 3333। अज्यूम करो 33 का 30% मेरा एग्जाम्प्टेड है, into 0.3 comes to 1,000 rupees। अब ये मैं ऑलरेडी 9 क्वार्टर्स मतलब पर क्वार्टर 3 months, 9 into 3 27 months ऑलरेडी मैं उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर चुकी हूँ, -60 33 months, 1,000 into 33 months which is 33,000। मैं क्या करूंगी, हर महीने 1,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट लाइबिलिटी लेजर में जोड़ती चली जाऊंगी, कितने महीनों तक, 33 मंथ्स तक। समझना कैसे किया, मेरा आंसर कितना है, 33,000। अगर मैं तुमको सिंपल बताऊं, आंसर फिर भी वही आएगा, 2 लाख में से 90,000, कौन सा 90,000 जो अपन ने ऊपर निकाला, कि आपने 9 क्वार्टर्स किस पर्पस के लिए यूज किया, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, तो 9 क्वार्टर्स का 5% के हिसाब से 45% होता है, तो टोटल कितना हुआ, 2 lakhs into 45%, 90,000 तो आपको पूरा मिलना चाहिए था, बचा कितना, 1,10,000 बचा, और 1,10,000 का कितना परसेंट, 30%। 1,10,000 का 30% कितना आता है, 33,000। क्योंकि अब ये जो है
1,10,000 मैं पूरा बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगी. 70% ऑफ माई मशीन इज गेटिंग यूज फॉर बिजनेस पर्पस, 30% ऑफ माई मशीन इज गेटिंग यूज फॉर एग्जामिनेट पर्पस. तो 30% के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं. तो 1 लाख का 30% कितना होता है? 33,000. मैं क्लियर? पर हम ये वाला पार्ट से हमारे कैलकुलेशन में जाने वाला है. ये वाला पार्ट 2 लाख डिवाइड बाय 60, इसे मेरे कैलकुलेशन एग्जांपल भी देकर रखा है. 2 लाख डिवाइड बाय 60 कि मुझे पर मंथ मैं 1 लाख से एक्चुअली होना कितना चाहिए था? 1,10,000 डिवाइड बाय 33 मंथ्स होना चाहिए था. पर वो लोग गलती क्या कर रहे थे? पूरा 60 कर रहे थे. वो लोग गलती क्या कर रहे थे? पूरा 60 कर रहे थे. उनका नहीं, आप एक क्या करो, पूरा कॉमन क्रेडिट 2 लाख ले लो, उसमें 60 डिवाइड कर दो. कितना आया? 33,333 आया. उसका 30% कितना होता है? 1,000 रुपए. 1,000 रुपए का पर मंथ आपको रिवर्स करना है. कितने महीने तक रिवर्स करना है? 33 मंथ तक रिवर्स करना है. कितना आया? 33,000 आया. रिप्लाई करो, समझा कि नहीं समझा? बहुत बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. सिर्फ लैंग्वेज में घुमा रहे हैं हमको. समझा कि नहीं समझा? रिप्लाई करो. Understood or not understood? Please reply. All. Sure. कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे देखते हैं. हमने 6 भी समझ लिया. तो 6 के लिए क्या बोला है? प्रायर टू अप्रैल प्रोवाइडर स्टेटेड दैट. पहले हम क्या करते थे, अगर मैं इसी एग्जांपल को लू ना, तो 110 को डिवाइड बाय 60 करते थे. वो गलत था. दो आंसर सेम आता. मैं अभी अगर सपोज मैं 1,10,000 को डिवाइड बाय 60 करती हूँ, 1,10,000 को डिवाइड बाय 60 करती हूँ. वेट, 1,10,000 डिवाइड बाय 60 करती हूँ तो कितना आता है? 1,833. इसका कितना परसेंट? 30%, जो मेरा एग्जाम्प्टेड के लिए यूज हो रहा है, इन 2.3 550. कितने महीनों तक? 50 इन 550 इंटू 60 मंथ्स करूंगी तो भी 33,000 आंसर आता है. तो रिवर्सल मेरा एंड ऑफ द डे 33,000 हो रहा है. पर क्या ये कैलकुलेशन सही है? क्या मेरी लाइफ 60 मंथ्स बची है? आप ऑलरेडी मुझे बोल चुके हो कि 9 क्वार्टर्स 27 मंथ्स आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो. आप टोटल लाइफ 5 इयर्स मानते हो और आप फिर 60 और कर देते हो, विच इज रॉन्ग. एम आई क्लियर? समझा? समझा कि नहीं समझा? बहुत समझा कि नहीं समझा? एम आई क्लियर? मतलब ये मैंने क्या क्या सिनेरियो कवर किए? ए बी सी, एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल, कॉमन, नेक्स्ट ईयर कॉमन, फिर उसके नेक्स्ट ईयर कॉमन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन? प्लीज अप्लाई करो. कोई कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन है? एम आई क्लियर? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक थॉट देते हैं. ये सी जो मैंने जुलाई 2020 में कॉमन पर्पस के लिए यूज की थी, खरीदी थी, अगर मैं उसको अगस्त 2021 में, दो ऑप्शन है, एग्जाम्प्टेड के लिए शिफ्ट कर दूं या टैक्सेबल के लिए शिफ्ट, एक एक सिनेरियो लेके चलते हैं. तो जुलाई 2020 में मैंने इस पर कितना टैक्स पे किया था? 3 लाख. मैं ऑलरेडी लेजर में ले गई थी पूरे 3 लाख. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस. तो 3 लाख रुपीस अगर मैं पूरा लेजर में ले गई थी, तो अब मुझे जब मैं 2021 में सपोज मैं उसको एग्जाम्प्टेड में शिफ्ट कर दिया, तो अब मैं उस दिन से देखा जाए तो जिस दिन मैंने शिफ्ट किया, मतलब देखो कितने क्वार्टर यूज कर लिए? 5 क्वार्टर इंटू 3 मंथ्स, मतलब 15 महीनों तक. जुलाई टू अगस्त कॉमन पर्पस था. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से क्वार्टर की बात चल रही है. तो मेरा बेसिकली क्या था? 15 महीनों तक मैंने उसको कॉमन पर्पस के लिए यूज किया. अब उसके बाद वाले पर्पस के लिए कौन सा पर्पस हो गया? एग्जाम्प्टेड पर्पस हो गया. तो अब मैं जितना भी बैलेंस होगा, मुझे क्या करना चाहिए? वो पूरा बैलेंस मुझे लाइबिलिटी लेजर में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर सकती. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? 15 मंथ्स तक पार्टली एग्जाम्प्टेड था, पार्टली टैक्सेबल था, इट वाज ओके.
15 मंथ्स तक पार्टली एग्जम्प्टेड था, पार्टली टैक्सेबल था, ओके 15 मंथ्स के बाद कंप्लीटली एग्जम्प्टेड के लिए यूज हो रहा है। तो अब मैं जो 15 मंथ्स के बाद जो अमाउंट आता है 5% पर क्वार्टर, मैं क्लियर, मतलब अगर 5% पर क्वार्टर है तो 5 क्वार्टर का कितना होगा, 5 into 5 that means 25%, तो 3 lakhs का 25%, आई होप विथ मी, 5 into 5 is 25%, तो 3 4 5 which comes to 75,000, 75,000 के बाद जो बैलेंस बचता है वो अब मेरा नहीं है, which comes to 2,25,000, 2,25,000 क्या मुझे पूरा रिवर्स नहीं कर देना चाहिए along with interest? Am I clear? और अगर मैं इसको पूरा टैक्सेबल के लिए यूज कर देती हूँ तो अब जो मैं कैलकुलेशन कर रही थी 15 महीनों के बाद आफ्टर 5 क्वार्टर्स, गेट योर पॉइंट, अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ, टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला? ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन समझ लिए, पहले किस पर्पस के लिए खरीदा उसको ट्रांसफर कर दिया, एम आई क्लियर? समझ में आया? यस ओके, तो नाउ लेट्स गो अहेड, वी आर डन विद अंडरस्टैंडिंग, सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क फॉर यू पीपल एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क फॉर यू पीपल, एम आई क्लियर? मैंने दोनों के सॉल्यूशंस यहाँ पे देख के रखे हैं, पहले आप खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखना, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई गो इट? कैन आई गो इट? तो नाउ लेट्स कम टू लास्ट सेक्शन ऑफ सेक्शन 17, फिर 17 सबसेक्शन 4, समझना, हमने 17 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 अभी नहीं किया, 5 किया, 6 किया, समझना, 1 इज बिजनेस पर्सनल, 2 इज टैक्सेबल जीरो रेटेड एग्जम्प्टेड, 3 इज एग्जम्प्टेड की डेफिनेशन को एक्सपांड कर दिया, 4 अभी नहीं पढ़ा, 5th इज ब्लॉक क्रेडिट एंड 6 हमें 42 एंड 43 में ले गया, 6 हमें 42 एंड 43 में ले गया, एम आई क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कैन आई गो बैक? तो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, एम आई क्लियर? 17 सबसेक्शन 4 करके वी आर डन कंप्लीटली विद सेक्शन 17, मतलब हमारा सेक्शन 16 भी हो गया, सेक्शन 17 भी हो गया, आईटीसी का मेजॉरिटी पार्ट हो गया, एम आई क्लियर? 17 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? ऑप्शन गिवन टू अ बैंकिंग कंपनी, पहली बात 17 subsection 4 is not applicable to all, as an option given to a banking company or a financial institution including an NBFC either to claim credit proportionately or 50% of eligible credit of the month. See, understand? बैंकिंग कंपनी को क्या बोला है, या तो आप 42 एंड 43 लगा के प्रोपोर्शनेटली काम करो, आप क्या करो 42 एंड 43 लगाओ, अगर बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, एनबीएफसी ने अगर इनपुट्स परचेस किया है, इनपुट सर्विस अवेल की है, अगर कैपिटल गुड्स परचेस किया है, तो उसका जब क्रेडिट की बात आती है तो इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस के लिए 42 लगा दो एंड कैपिटल गुड्स के लिए 43 लगा दो, मतलब ये हो जाएगा एकदम परफेक्ट तरीका। और अगर आपको लगता है कि नहीं वी कैन नॉट इंटेंड सो मच कंफ्यूजन, बहुत बड़ा स्टेप है, आप सीधे सीधे क्या कर लो, हर महीने एलिजिबल क्रेडिट, एलिजिबल पढ़ते अपन, जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 50% अवेल कर लो, बैलेंस 50% भूल जाओ। मतलब हम ये मान के चलते, सी बैंक क्या करती है, बैंक का दो, अगर मैं बोलूं दो मेजर बिजनेस है, टैक्सेबल एक एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड कैसे, बैंक लोन्स देती है, उस लोन्स पे इंटरेस्ट लेती है, उस इंटरेस्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं करती है, तो बैंक का एक मेजर पोर्शन क्या है, लोन एडवांस डिपॉजिट, उस पे इंटरेस्ट लेना एंड ऑन दैट इंटरेस्ट नो जीएसटी, मतलब एग्जम्प्टेड सर्विस का, मैं क्लियर? उसके अलावा बैंक बहुत सी करवाती है तो वो टैक्सेबल सर्विस में आता है, मैं क्लियर? मतलब बैंक भी दो सर्विस देती है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड।
बैंक भी दो सर्विस देती है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड। मैं क्लियर? तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट आईटीसी चाहिए, आप 42 एंड 43 फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जैक्ट आईटीसी चाहिए तो आप 42 एंड 43 फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि नॉट एंटर सो मच कैलकुलेशन, तो डायरेक्टली टेक एलिजिबल क्रेडिट का 50%। दैट मींस आई एम अज्यूमिंग कि 50% आपका टैक्सेबल बिजनेस है, 50% आपका एग्जम्प्टेड बिजनेस। समझा ये वाला लाइन? ये वाला लाइन समझा जो मैंने क्या बोला? अब मैं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो 42 एंड 43 तो मैं आपको समझा चुकी हूं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी लगा दो, आपको कैलकुलेशन में एग्जाम में चेक करना पड़ेगा कि 42 43 लगा के आईटीसी ज्यादा मिल रहा है कि 50% लगा के आईटीसी ज्यादा मिल रहा है। हो सकता है कि आपका एग्जाम, आपने माना क्या है कि एग्जाम्प्टेड 50% है, ये तो रफली मान लिया है, ये तो रफली मान लिया है, पर हो सकता है रियल वर्ल्ड में, रियल सिनेरियो में आपका एग्जाम्प्टेड ज्यादा है, 55% है। 55% अगर आपका एग्जाम्प्टेड है तो आपको क्रेडिट कम मिलेगा। मैं क्लियर? इन दैट केस क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर बोथ द कैलकुलेशन एंड देन सी व्हिच वन इज गिविंग यू मोर क्रेडिट। यू हैव टू फॉलो दैट। ये समझा? तो आ रही हूँ आगे, डोंट वरी, आई एम नॉट लीविंग यू पीपल। ये चैप्टर खत्म करके छोड़ूंगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई गो अहेड? तो क्या लिखा है? आई होप ये विथ मी इतना समझा या रिप्लाई करते जाया करो, थम्स अप वम्स अप कुछ तो दिया करो। एज अ टीचर मुझे समझ में नहीं आता कि तुमको समझा कि नहीं समझा। प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। Okay. Okay. As an alternative to the above method, a banking company or a financial institution, including NBFC, which accepts deposits or extends loans or advance, has the option to limit its availment 50% avail करो। बस avail कितना करो? 50% of eligible credit and balance 50% will lapse। मतलब मानेंगे कि आपको avail ही कितना होगा? 50%। Now, credit of tax paid on inputs and input services that are used for non-business purpose and items mentioned under section 17 subsection 5 is block cannot be availed। See, 50% मिलेगा किसका? जो एलिजिबल है। तो क्या एलिजिबल नहीं है? पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। Am I clear? I hope with me. See, क्या लिखा है? That are used for non-business purpose and block credit। Am I clear? इन दो का हम आपको 50% कैलकुलेट करने नहीं देंगे। Am I clear? Am I clear? This restriction of 50% ITC shall not be applied to the tax paid on supplies procured from another registration within the same entity। ये 50% अगर आपने इनपुट से, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ इंडिया मतलब ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है, एमपी वाले ने महाराष्ट्र वाले से सर्विस ली, तो उस केस में 50% का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन टेक 100% क्रेडिट। मैं क्लियर? समझना भी बहुत आगे और डेप्थ में जाते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। जो आपने फर्स्ट ऑप्शन एक्सरसाइज, आपने जो भी ऑप्शन शुरुआत में साल के एक्सरसाइज किया वो आपको पूरे साल कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं क्लियर? मैं क्लियर? तो ऑप्शन 1 क्या है? प्रोपोर्शनेट। ये ऑप्शन 2 क्या है? 50% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। इसका एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, देखो तो जैसे बैंक दिमाग में आता है ना, आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए। एक तो बैंक के लिए इनवॉइस का टाइमिंग इज नॉट 30 डेज, इज 40 डेज, 45 डेज, 45 डेज, नॉट 30 डेज 45 डेज, ये दिमाग में आना चाहिए। दूसरा, बैंकिंग के केस में आपको एक और ऑप्शन है 50% का। मतलब एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST, SGST अवेलेबल ऑन इनपुट रिसीव्ड। इनपुट्स पे आपने इतना क्रेडिट है एलिजिबल। एलिजिबल इनपुट टैक्स अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विस अवेल्ड इज दिस मच। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 11 लाख, विल एग्जामिन सप्लाई 10 लाख। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू पंजाब नेशनल बैंक। अब आप क्या करो? दो ऑप्शन है। केस 1 50%, एलिजिबल दे दिया है, दोनों का टोटल ले लो, 16,020 एंड 11,030-40 रुपीज का टोटल ले लो, उसमें से 50% हटा दो तो 50% ही मिलेगा आपको। कितना मिला? 13,680। ये तो हो गया सिंपल, एलिजिबल का 50% ले लो। या आपको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है तो आपको बोला गया है कि टोटल टर्नओवर कितना हो गया?
21 lakhs हो गया। टोटल कितना हो गया 21 लाख, उसमें एग्जाम्प्टेड कितना है 10 लाख। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस, आई होप यू आर विथ मी। यस, तो इस केस में ओके इस केस में वेट, इन दिस केस 21 lakhs के लिए 21 lakhs के लिए इट इज 27,360। तो 10 lakhs के लिए कितना आया 13,000 आया। कितना आया 13,029। और यहां कितना आ रहा था 13,680। नीचे आया 13,029, ऊपर आया 13,680। समझो ऊपर 50% मिला है, नीचे 50% नहीं है। 10 डिवाइड बाय 21 करोगे आप तो एक्चुअल आपका 47% ही है। एक्चुअल आपका 47% ही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? यस और नो? Yes or no? I hope you are with me. Am I clear? Am I clear? In that case, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Am I clear? तो आपको कितना मिलेगा? आपको exempted, एक मिनट वेट वेट 27,360 ना, तो 21 lakhs के लिए it is 27,360 and 10 lakhs के लिए कितना? वेट 10 divided by 21 into 27360 is 13028। इतना आपको नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्प्टेड के लिए हो गया, ये एग्जाम्प्टेड के लिए हो गया। मैं क्लियर? तो कितना मिलेगा आपको 27,360 माइनस 13028, you will be getting 14332। इतना मिलेगा आपको। yes or no? yes, I hope you're getting my point. I hope you are getting my point. इतना मुझे क्रेडिट मिलेगा, एग्जाम्प्टेड का नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? तो 14332 का मुझे क्रेडिट मिलेगा, 14332 का मुझे क्रेडिट मिलेगा। एम आई क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला है इस केस में, फर्स्ट केस में कितना मिल रहा है 13680। एम आई क्लियर? मेरी लाइबिलिटी क्वेश्चन में अपन देखते हैं लाइबिलिटी कितनी है 11 lakhs का मेरा टैक्सेबल सप्लाई है, 11 lakhs का मेरा टैक्सेबल सप्लाई है। और टैक्सेबल के लिए रेट कुछ देके रखा है क्या, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 99% है। 99,000 मुझे एस पे करना है, 99,000 में से सी पे करना है। पहले केस में 13680 माइनस कर दूंगी तो इतना मुझे पे करना पड़ेगा। सेकेंड केस में मुझे 99,000, just let me calculate, 99,000 minus माइनस 14332, मतलब मुझे 84668 और 9 पे करना पड़ेगा। मैं क्लियर? ऊपर मुझे कितना पे करना पड़ रहा है 85320 पे करना पड़ रहा है, 85, नीचे मुझे 84। तो इन शॉर्ट में कौन सा ऑप्शन अवेल करूंगी, इन शॉर्ट में कौन सा ऑप्शन अवेल करूंगी बॉस? ऊपर आपने 50% एग्जाम्प्टेड माना पर एक्चुअली एग्जाम्प्टेड 47% ही है। ऊपर आपने 50% एग्जाम्प्टेड माना पर एक्चुअली एग्जाम्प्टेड 47% ही है, तो 40% का ही रिवर्स होगा ना। तो मुझे मतलब 53% का मुझे क्रेडिट एक्स्ट्रा, मतलब 53% का मेरा 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Am I clear? तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करूंगी? आई विल बी फॉलोइंग द प्रोपोर्शनल मेथड। समझ में आया? समझ में आया? यस, समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया, कि कोई कंफ्यूजन है? प्लीज रिप्लाई। बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट 42, बेसिकली टॉकिंग अबाउट 42। किसकी बात चल रही है 42 की बात चल रही है। Inputs and yeah, 50% of inputs, 50% of capital goods and 50% input service, सबका एलिजिबल का 50% ले लो। Am I clear? Am I clear? क्वेश्चन में मैंने आपसे सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस वाले डिस्कस किया। Am I clear? कोई प्रॉब्लम? पक्का बॉस, आज हमने बहुत कैलकुलेशन वाला पार्ट किया है। होप यू गेटिंग माय पॉइंट? यस,
प्लीज प्लीज थोड़ा सा घर जाके आज ही पहले से रिवाइज करो, बिकॉज अभी के अभी रिवाइज करोगे तो आपको और समझेगा कि मेरे को ये नहीं आया या ये पॉइंट की क्लैरिटी और चाहिए. Am I clear? Am I clear? Okay, so I'll continue tomorrow. Okay, take care. Bye bye.